السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میرا محبوب اولاش ابھی تک نہیں آیا تھا اور اس نے مجھ سے انتظار کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں دل میں امید کی دیا جلائے اس کے انتظار میں وقت گزار رہی تھی۔ محال کی ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید خود مجھ میں تبدیلی آ گئی ہو، اور حقیقت یہی تھی کہ میرا دل پہلے سے درد سے آشنا نہیں تھا۔ پہلے میں ایک بند کلی تھی اور اب میں مہکتا ہوا پھول بن گئی تھی۔ یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں ذیشان علی کہ میں بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اب جب کبھی میں اپنی اصل حقیقت کا تصور کرتی تو مجھے یوں لگتا جیسے میں اپنی اصلیت گم کر چکی ہوں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے بچپن سے یہاں تک کا سفر کیا تھا، اور یہ سفر اس طرح میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا کہ میں کنوتی کو بھول گئی۔ البتہ یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ اب میں مہکتا ہوا پھول بن گئی تھی، لیکن اسناکیہ کی حیثیت سے شاہدارہ کی سیج پر میری مجبوریوں نے مجھے سب کچھ برداشت کرنے کا عادی بنا دیا تھا، جس کا تصور بھی اذیت ناک تھا۔ لیکن عورت ہر روپ میں مجبوریوں کے اس قربان گاہ پر نثار ہوتی چلی آئی ہے۔ کہنے کو میں شہزادی تھی، لیکن شاہی سیج پر ایک بے بس کنیز۔ میرا ذہن تجربات سے پختہ ہو گیا۔ مشاہدے اور تجربے نے مجھے ایک نیا شعور عطا کیا۔ میرے بابا اور استاد نے بھی میرے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کر لیا اور مجھے انتظامی مجلس میں شامل کر لیا گیا۔ میں نے بھی ان کے اعتماد کو تقویت پہنچانے کے لیے خود کو مجلس کی ذمہ داریوں کے لیے وقف کر دیا۔ حکمرانی کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنا اور فارس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی صورت میں شاہدارہ کی ہر ممکن مدد کرنا ہماری حکومت کی اولین فرائض میں سے تھا۔ میرے والد کی صحت یابی بہت متاثر ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے فرائض میں منہمک تھے۔ وہ فوجی قوت کو جلد از جلد بحال کرنا چاہتے تھے تاکہ فارس کو جب بھی ضرورت ہو کسی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ ہم جنگ کے محاذ سے بہت دور تھے، لیکن سکندر کی کارروائیوں سے پوری طرح باخبر۔ سکندر نے طائر کے ناقابل شکست قلعے کو بھی مسلسل 7 ماہ کے مارکے کے بعد فتح کر لیا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی فتوحات سے پورا ایشیا خطرے میں پڑ چکا تھا۔ میں ہر روز بلا ناگا صبح کو شہر کے پھاٹک پر روانہ کرتی، جہاں سے مغرب کی سمت آنے والے قافلے اندر داخل ہوتے تھے۔ ہر روز دھڑکتے دل سے انتظار کرتی کہ شاید آج اولاش کے بارے میں کوئی خوشخبری لائے، لیکن ہر شام مایوسی میرے حصے میں آتی۔ صبح مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی کہ اس سے میری یہ اذیت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ مجھے تسلی دیتی کہ ممکن ہے اولاش زندہ ہو اور ایشین سے فرار ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس یروشلم چلا گیا ہو۔ میں نے صبا کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اب بھی وہ پہلے کی طرح میری خدمت گار تھی، اور اس کی کلائی پر غلامی کا جو داغ کندہ تھا میں نے جراح کے ذریعے اس کو ہٹوا دیا تھا۔ میں نے اس کو پہننے کے لیے بہترین لباس اور زیورات دیے اور اس سے اپنی چھوٹی بہن جیسا سلوک کرتی۔ وہ فعال شعار تھی اور میری خدمت کو اس نے اپنا شعار بنا لیا تھا، اور پھر ایک دن اس نے اجازت لے کر مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ شہزادی، اب کب تک اولاش کے فراق کی آگ میں جلتی رہیں گی؟ مظہر یزدان نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا ہے کہ چاند تارے بھی شرماتے ہیں۔ بابل میں آپ کے ایک اشارے پر کتنے شہزادے قربان ہو جائیں گے۔ آپ اولاش کو بھول جائیے۔ ایک سے ایک خوبرو نوجوان آپ پر جان سار کرنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ میں اس کی بات پر افسردہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ پگلی، تو سمجھتی ہے کہ محبت بھی کوئی ایسا سودا ہے جس سے چاہو کیا جا سکتا ہے؟ میں اولاش سے انتظار کرنے کا وعدہ کر چکی ہوں، اور زندگی کی آخری سانس تک اس کا انتظار کروں گی۔ تو محبت کا درد نہیں جانتی، یہ قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اولاش کے علاوہ اور کوئی میری محبت نہ حاصل کر سکے گا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ جب میرے بابا تازہ دم لشکر لے کر شاہدارہ کی مدد کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اپنے کمرے میں جب وہ رخصت کی تیاری کر رہے تھے تو میرے بھائیوں نے ان کے جسم پر ہتھیار سجائے۔ بابا نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے تمام بیٹے سعادت مندی کا ثبوت دیں گے، اور پھر وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے، اور ان کی سیاہ چمکیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔
असनाकिया मेरी बेटी, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, लेकिन मग ने तुमको बचपन ही से गैर मामूली फहमो दानिश अता की है, इसलिए मैं सगोदिया की हुक्मरानी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। तुम अपने उस्ताद सल्तनत के रौसा और मशीरों की मदद से कारोबार हुकूमत चलाना, हुकूमत का दबदबा कायम रखना, हर एक से इंसाफ करने को अपना अव्वलीन फ़र्ज तसव्वुर करना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। खुदा हरमज़ की मदद शामिल हाल रही तो मैं आपकी तवक्कात पर पूरा उतरूँगी। मेरे बाप की रवानगी के बाद ही सिकंदर की पेशकदमी की खबरें आने लगी और एक खूनी जंग के बाद गाज़े भी फतेह हो गया था। फिर यरूशलेम के लोगों ने सिकंदर की अतात कबूल कर ली और उसके बाद मिस्र भी फतेह हो गया और वहाँ के ईरानी सस्तर आपने उसे फ़िरऔनी सानी के लक़ब से नवाजा और मैंने एक फरमान जारी करके सगूदिया के तमाम बाशिंदों को सिकंदर से जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। पूरे सगोदिया में जंग की तैयारियां शुरू हो गईं और फिर एक दिन मैं इन तैयारियों का मुशाहदा करने के लिए पहरेदार के हमरा भेस बदल कर खुद शहर के गश्त पर निकली। बाज़ार में एक जगह बड़ा मजमा लगा था और एक शख्स चीख कर लोगों को बता रहा था, लोगों मेरी बात सुनो, शाह फ़ारस ने सिकंदर को सुलह का पैगाम भेजा था और उसे खबरदार किया था कि फ़ारस की सरजमीन का रुख ना करे वरना इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जानते हो सिकंदर ने क्या जवाब दिया? उसने सुलह की पेशकश मान ली होगी। बहुत से लोग खुशी से चिल्लाए। नहीं, उसने जवाब में तहरीर किया है कि सिकंदर के बढ़े हुए कदम कभी वापस नहीं होते। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा लश्कर तुम्हारी दारुल सल्तनत पर नादल होगा और पूरे फ़ारस पर काबज़ हो जाएगा। तुमको फ़ारस की सरजमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उस खबर से सारे लोगों पर मायूसी और दहशत तारी हो गई। फिर खबर आई कि दारा की मलका सिकंदर की क़यादत में इंतकाल कर गई और सिकंदर ने बड़े इज़्ज़त व एहतराम से उसकी आखिरी रसूमात अदा की। लेकिन उसके साथ ही ये खुशकन इतलात भी आ रही थी कि दारा ने इतना बड़ा लश्कर जमा कर लिया है कि अरबीला के सारे मैदानी इलाके से लेकर फ़रात के दूसरे किनारे तक फ़ौजें फैली हुई हैं। उस लश्कर में सिर्फ सवारों की तादाद 1.5 लाख है। शाह ने इन तमाम इलाकों से गले का ज़ख़ीरा अंदरूनी मुल्क रवाना कर दिया है ताकि सिकंदर की फ़ौजों को कहीं से रसद ना मिल सके। पूरे सगोदिया के इलाके में मुआबदों ने शाह की फतह और नुसरत के लिए खसूसी दुआएं शुरू कर दी। कुर्बानियाँ दी जाने लगी हैं। काहनों ने अपना अमल शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन एक मनहूस खबर आई कि अरबीला की जंग में शाह दारा को शर्मनाक शिकस्त हुई। मेरा जी चाहा कि यह खबर लाने वाले कासद को ज़िंदा दफन कर दूं, लेकिन मैंने ज़ब्तो तहम्मुल से काम लिया। शाह दारा की दूसरी शिकस्त से वादा हो गया था कि सगूदिया का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। मैंने हुक्म दिया कि 10 साल से ऊपर के तमाम नौजवानों की जंगी तरबियत शुरू कर दी जाए। जंगी सरदारों से मशवरे के बाद मैंने सोने और चांदी के एवज़ हथियार खरीदने के लिए लोगों को हिंदुस्तान रवाना कर दिया और ये हुक्म भी जारी कर दिया कि सगूदिया के इलाकों में जितना भी अनाज मिल सके खरीद कर ज़ख़ीरा कर लिया जाए। सिकंदर की पेशकदमी की खबरें बराबर मिल रही थी। अरबीला की फतह के बाद वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। मैंने आखिरकार पहाड़ की चोटी पर वाक़या मजबूत तरीन किले में अनाज का इतना ज़ख़ीरा कर दिया कि मुहासरे की सूरत में कई बरस तक काम आ सके। शाह दारा तीसरी मरतबा फ़ौजें जमा कर रहा था और मेरे बाप ने मुझे तहरीर किया कि जितने ज़्यादा सिपाही जमा हो सकें रवाना कर दो और मैंने उनके हुक्म की तामील की। लेकिन दोनों जंगों और दफाई तैयारियों में खजाना तकरीबन खाली हो चुका था। उधर सिकंदर ने सोसा, बाबल और फिर पुरसी पुलिस पर कब्जा कर लिया और फिर उस तरह बेहिसाब शाही खजाने उसके हाथ लगते चले गए और उसने शाही महल्लात को आग लगाकर तबाह व बर्बाद कर दिया। तबाही और बर्बादी की इन खबरों ने हमारे हौसले बिल्कुल पस्त कर दिए और फिर एक भयानक आवाज़ आई। ऐसे लगता था कि जैसे बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। हर सिमत मौत की वीरानी तारी हो चुकी है। मैंने अपने उस्ताद को बुला भेजा। गमो अंदोज से उस्ताद का सर झुका हुआ था। असनाकिया, हम काहनों ने बहुत पहले सिकंदर के सितारे पढ़ लिए थे। वो पूरे फ़ारस पर काबज़ हो चुका है। अब हमको बहुत से सदमे बर्दाश्त करने होंगे। उन्होंने बताया कि महल के हाथे में कुत्तों ने अचानक रोना शुरू कर दिया। इस पेशगोई से मैं कांप उठी और हमें सुबह तक उसका सबूत भी मिल गया। शाह फ़ारस मर चुका था। हम सब गम और मायूसी में डूब कर रह गए। चंद रोज़ के बाद तफसीलात पता चल गईं क्योंकि मेरा बाप
बची हुई सपा के साथ वापस आ गया और उन्होंने बताया कि बाख्तर के गवर्नर ने इक़्तिदार के लालच में शाह दारा को कत्ल कर दिया। वो गवर्नर बहुत ताकतवर सरदार था और उसका नाम बीसिन था और उसके पास लश्कर भी बहुत बड़ा था और उसने शाह को गिरफ्तार करने के बाद सिकंदर को पेशकश की कि अगर उसे बाख्तर का खुद मुख्तार हुक्मरान तस्लीम कर लिया जाए तो शाह दारा उसके हवाले कर दिया जाएगा। उस मकसद के लिए वो सिकंदर से मुलाकात के लिए एक मुकर्रर मकाम पर गया, लेकिन सिकंदर को ऐसी गद्दारी नापसंद थी, इसलिए जैसे ही बीसंद उस मकाम पर पहुंचा, सिकंदर ने अचानक अपने लश्कर के साथ हमला कर दिया। बिस्मज ने बदहवास होकर फरार होते वक्त शाह को कत्ल कर दिया। कहते हैं कि शाह दारा की मौत पर सिकंदर आबदीदा हो गया और उसे शाही मकबरे में पूरे एजाज़ के साथ दफन किया गया। मैं फ़ारस के इस अजीम हुक्मरान की बेबसी की मौत पर रो पड़ी। बाबा, क्या सिकंदर अभी और पेशकदमी करेगा? मैंने पूछा। हाँ सनाकिया, अभी सिकंदर के कदम बढ़ते ही चले आएंगे और हमारी सरहदें महफूज नहीं रहीं। मेरे बाप ने अफसुर्दा लहजे में कहा, लेकिन हम उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दिन गुजरते रहे, फ़िज़ा में एक अजीब किस्म की सोगवारी छाई रहती। मेरे बाबा अपनी बाकी फ़ौजों को लेकर बाख्तर की सिमत जा चुके थे। मैं ममलकत के कारोबार चलाने के लिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखने लगी। ज़ीशान, ज़रा गौर करो, सदियों से जीने वाली औरत जो दोहरी शख्सियत रखती हो, एक तरफ कुव्वत और जादूगरी में बाकमाल, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो अपनी असल हसीयत से सामने आई तो एली गोस, जिससे उसका सब कुछ छीन चुका है, उसे पत्थर में तब्दील कर देगा। एक जिंदा बुत कैसा लगेगा तुम्हें? ज़रा गौर करो इस बात पर। खैर, एक दिन जब मैं दरबार में बैठी थी और लोगों की फरियाद सुनकर इंसाफ कर रही थी कि एक शख्स आगे बढ़ा और उसने बताया कि एक जरा ने उसके 4 कलम हलाक कर दिए, 4 गुलाम हलाक कर दिए। सबूत में उसने 5 मुलाजम को पेश किया जिसका नाम बूगा था। बूगा की सूरत देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ी और मैंने उसे औलाश के साथ शाह फारस के महल में देखा था। ये भी एक गवैया था। खैर, मैंने जराह की जायदाद जब्त करके फरियादी का नुकसान पूरा करने का हुक्म दिया और बूगा को ख़रीद लिया। दरबार ख़त्म होने के बाद मैंने बूगा को फ़ौरन महल में तलब किया और उससे औलाश के बारे में दरियाफ़त किया। आज शहज़ादी औलाश मेरा अजीज़ दोस्त था, लेकिन एशियन में जंग के दौरान जब मकदूनिया ने हमारे खेमे पर हमला किया तो औलाश वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि उसका अंजाम क्या हुआ। गिरफ्तारी के बाद हमें बाबल में गुलाम की हैसियत से फ़रोख्त कर दिया गया। ये है मेरी दास्तान। मैंने उसे आज़ाद कर दिया। बेचारा बूगा गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था, इसलिए आज़ादी का सुनकर बेसाख्ता मेरे कदमों पर गिर कर रोने लगा और मैंने उसे अपने भाइयों की तरबियत पर मामूर करके महल में मुलाजम रख लिया। गम न कर बूगा, इसके अलावा तुम मेरे ज़ाती मुंशी के ओहदे पर भी काम करोगे, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा और उसके लिए महल में ही रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। इस दौरान सिकंदर की मुसलसल पेशकदमी जारी थी, जो तूफ़ान की तरह हमारी सरहदों की सिमत बढ़ता चला आ रहा था और उसकी फ़ौजों ने बाख्तर की सरहदों में दाखिल होकर बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। बीसंद ने मेरे बाबा के साथ मिलकर सिकंदर को रोकने की नाकाम कोशिश की और फिर फरार होकर अस्कोडिया में मोर्चा बंदी शुरू कर दी, लेकिन अस्कोडिया का अंजाम भी वाज़े था। किसी वक्त भी सिकंदर उधर का रुख कर सकता था। मैं आने वाले वक्त के लिए दफ़ाई तैयारियों में मसरूफ़ थी कि एक कासद मेरे बाबा का ख़त लेकर मेरे पास पहुंच गया। मनजानब अख्तरस अपनी बेटी सनाकिया के नाम बाबा ने तहरीर किया था। मैं हुक्म देता हूँ कि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुल्क छोड़कर एम्बेसीज के किले में जाकर पना लो। अहले ख़ानदान के अलावा महल के तमाम अफराद और अहलकार और मेरे वफ़ादार दोस्तों को साथ ले जाओ। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हम हर कदम पर दुश्मन से मुकाबला जारी रखेंगे। ज़िंदगी है तो जल्द मुलाकात होगी। मुझे अपना महल छोड़ने का बेहद सदमा हुआ, लेकिन बाबा के हुक्म की तामील फ़र्ज थी। हम अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए एम्बेसीज के किले में मुंतकिल हो गए। इस तरह 1 साल बीत गया और एक तवील 12 माह की मुद्दत में हमारा बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। अलबत्ता कभी कभी मेरे बाप के कासद हमारे बाहर के इलाके से बाखबर कर दिया करते। बाबा की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। रेस, किला के फौजी दस्ते और 3000 किसानों की निगरानी, जो किले में फलों और सब्जियों की काश्त के अलावा मवेशियों के पालने के ज़िम्मेदार भी थे और उनकी देखभाल एक उम्र रसीदा सरदार करता था। मेरे पास अब कोई मसरूफियत नहीं थी।
क्योंकि देगर कामोकाज की तमाम जिम्मेदारी वफादार बूगा ने संभाल ली। चौंका मैं बचपन ही से इस गली में क़याम करती रही थी, इसलिए उसका चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ था। इस वक्त सूरत हाल अलग थी। जब हम मुख्तसर क़याम लिए यहाँ आते थे तो माहौल बड़ा खुशगवार होता था। रक़्स व मौसीकी की महफ़िलें और शिकार व तफरीह की सरगर्मियों में हर लम्हा हंसी खुशी गुजरता, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं था। हर तरफ वीरानी का राज था और मैं सोच रही थी कि कितने अरसे यहाँ क़याम करना पड़ेगा। शहर की तरफ से कोई खैर खबर नहीं थी और उसी तरह मायूसी में दिन गुजर रहे थे। सिकंदर की पेशकदमी की इतलाआत मिलती रहती और हम सब सहम जाते। बाबा ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी और वो सिकंदर की फ़ौजों से मुख्तलिफ मकामात पर जंग करने की भरपूर कोशिश में मसरूफ़ थे, लेकिन कहीं कामयाबी नसीब नहीं हो रही थी। हमारे लिए अभी यही हुक्म था कि किले से बाहर निकलने की कोशिश ना की जाए। फिर एक दिन मैं हस्बे मामूल सबा और बूगा के साथ किले में घूम रही थी कि किले के मैदान में मेरे छोटे बहन भाई दूसरे बच्चों के साथ बर्फ़ में घूम रहे थे और इस खेल में भी सिकंदर की फ़ौज पर हमला करके मकदूनी सिपाही को हलाक कर रहे थे। मैं मुस्कुराती हुई उनके खेल के मैदान से गुजरकर सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ती रही। हर सिमत मौत जैसी वीरानी थी। किले की फसील पर एक फ़ौजी के पास पहुंचकर मैं रुक गई और पत्थर की मंडेर के सहारे खड़े होकर बाहर का मंजर देखने लगी। इंसान तो क्या, किसी हैवान का नामो निशान भी नज़र नहीं आता था। मैंने कहा कि न जाने कब इस कैद से निजात मिलेगी। हमारे पास खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी का ज़ख़ीरा अभी 2 साल के लिए काफ़ी है। बूगा ने आहिस्ता से कहा, क्या जंग इतना अरसा जारी रह सकती है? खुदा बेहतर जानता है, मैंने जवाब दिया। और हमारे शहर पर भी सिकंदर काबज़ हो चुका था। न जाने बाबा अब किस हाल में होंगे। 20 दिन गुजर चुके, कोई कासद भी नहीं आया। खुदा उसे गारत करे शहज़ादी, बूगा ने गुस्से में जवाब दिया, और उसने हमसे ज़िंदगी के चंद दिन का सुकून भी छीन लिया। हम महल में वापस आए तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन बैठी हुई पांसा खेल रही थी। माँ ने मेरा बोसा लेकर कहा, बेकारी के लम्हात बड़ी मुश्किल से बसर होते हैं बेटी। बूगा, तुम हमें इस मनहूस सिकंदर के बारे में कुछ सुनाओ, और तुमने तो उसे करीब से देखा है। मुझे उसे देखने का मौका कम ही मिला, लेकिन मुख्तसर बता सकता हूँ कि अपनी शोहरत के बरखिलाफ़ वो बहुत पिस्ता कद और मामूली सा आदमी है। तख्त पर बैठता है तो उसके पाँव लटकते रहते हैं। ताज्जुब है कि इतने मामूली से आदमी ने इतने बड़े मार के सर कर लिए। मेरी छोटी बहन बोली, फ़ारस की औरतें उस पर जान देने लगी हैं। तुम्हें ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। माँ ने गुस्से से सरजश की, फिर बोली, सिकंदर कितना ही बहादुर क्यों ना हो, हमारे किले को सर नहीं कर सकता। उसी लिए तुम्हारे बाप ने हमें यहाँ पनाह लेने के लिए हदायत की थी। ये किला, मेरी छोटी बहन ने गुस्से में कहा, खुदा गारत करे इस किले को। मैं तो इससे आजिज़ आ चुकी हूँ, और इस तन्हाई से तो यही बेहतर था कि मकदूनी इसको भी फतह कर लें। ज़ुबान को लगाम दे लड़की, माँ ने गरज कर कहा, खुदा ना करे कि अगर कभी ऐसा हुआ तो हमारी आबरू तक लूट लेंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, और हम कब तक आबरू के खौफ से कैद तन्हाई बर्दाश्त करेंगे। मैं तो दुआ करती हूँ कि सिकंदर जल्द से जल्द इस किले को भी फतेह कर ले। मैंने गुस्से से बेकाबू होकर एक थप्पड़ अपनी बहन के रुखसार पर रसीद किया और बोली, क्या तुझ पर किसी बदरू का साया हो गया है? गुमाया, बाबा मकदूनिया से जंग कर रहे हैं और तू दुश्मन की फतेह की दुआ मांग रही है। तुम्हारे जज्बात तो सर्द हो चुके हैं। मेरी छोटी बहन गुमाया सिसकियाँ लेती हुई चीखी, तुमने मर्द की तरह परवरिश पाई है, क्या जानो तुम तन्हाई क्या चीज़ होती है। खुदा करे तुम किसी मकदूनी की सेज की जीनत बनो। गुमाया ने चिल्लाकर मुझे गाली दी और वो गुस्से से पागल हो रही थी। मेरी माँ रोने लगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और वहाँ से उठकर अपनी ख्वाबगाह में आ गई। गुमाया की इस बेहुदा हरकत ने मुझे हिला कर रख दिया और मेरा सर दर्द से फटने लगा। मैंने सबा को उस्ताद के पास भेजा कि वह मुझे ख्वाब आवर शरबत ला कर दे। शरबत पीकर मैं बेखबर सो गई। नींद की आलम में मुझे एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। मैंने देखा कि मैं बाबल में हूँ। शाहाना लिबास पहने हुए मैं शाही दारा के तख्त पर बैठी हूँ, लेकिन महल में एक भी ऐरानी नहीं और मेरे गिर्द सिकंदर के मकदूनी कमांडर बाअदब खड़े हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रा भी खौफज़दा नहीं। अचानक महल के बाहर कुछ शोर शराबे की आवाज़ें बुलंद हुई, जैसे हज़ारों लोग गमो अंदाज़ से नडाल आहो बका कर रहे हैं। कमांडर एक दूसरे को मैंने खेद निगाहों से देखते हैं और फिर एक कमांडर चिल्लाकर कहता है,
असनाकिया का हमल 6 माह का हो चुका है। खुदा ने अगर इसे बेटा अता किया तब वही असली वारिस और जानशीन होगा। मैं घबरा कर बेदार हुई तो तमाम जिस्म पसीने से तर था। मैं सोचने लगी कि खुदाया ये कैसा बेहानक और मनहूस ख्वाब है, जाने क्या मुसीबत आने वाली है। मैंने कनीज को आवाज़ देकर खजूर की शराब मंगवाई और उसे पिया तो तबीयत ज़रा सी संभली और फिर भी बदन खौफ से कांप रहा था। अलबत्ता शराब के असर से मैं फिर सो गई और जब सुबह को बेदार हुई तो तबीयत बहाल थी, लेकिन भयानक ख्वाब की याद अब तक ताज़ा थी। मैं सीधी इबादत गाह तक पहुंची और मैंने अपने उस्ताद हारूस को ख्वाब की तफसील बताई। वो गहरी सोच में डूब गए और उन्होंने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर के बाद वो बोले, असनाकिया, मैं कई माह से तुम्हारे सितारों का मुताला कर रहा था। मुझे मालूम था कि किस्मत तुम्हें बहुत जल्द इस मर्तबे पर ले जाने वाली है जिसके लिए तुम पैदा हुई हो, लेकिन इस ख्वाब से ज़ाहिर होता है कि मंजिल अब करीब आ गई। मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर के इस इशारे से समझ गया हूँ कि उसने तुम्हें जिस मकसद के लिए मुंतखब किया है उसकी ताबीर मिल चुकी है। सुनो असनाकिया, इस ख्वाब की ताबीर बहुत वाज़ेह है। तुम्हारे गिर्द पेश मकदूनी कमांडरों की मौजूदगी और उनका खाइफ ना होना ये ज़ाहिर करता है कि तुम दोस्तों के दरमियान हो और तुम्हारी बतन में सिकंदर का बच्चा परवरिश पाने का मतलब ये है कि अगर खुदा को मंजूर हुआ तो तुम उसकी मलका बनोगी और तुमसे जो बेटा पैदा होगा वो सिकंदर का जानशीन और फारस के तख्त का वारिस होगा। नहीं, मैं गुस्से से चीखी, ये वक्त आने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैंने कांपते हुए कहा, खुदा की मर्जी में इंसान का दखल मुमकिन नहीं। उस्ताद ने कहा और उसने यही बशारत दी है कि सिकंदर जैसे अजीम फातेह का वारिस ईरानी शहजादी के बतन से पैदा होगा और एक दिन यही बच्चा फिर फारस की सरजमीन का वारिस होगा। इस तरह मकदूनियों की फतह के बावजूद तुम फारस को उसके जायद वारसों को वापस दिलाने का जरिया साबित होगी। नहीं उस्ताद हारूस, ये नामुमकिन है। मैं कभी इस बात पर रज़ामंद ना होंगी। मैंने सिसकियाँ लेते हुए कहा, मैं फाते दुश्मन से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। सिकंदर, और मेरा जुमला नामुकम्मल रह गया। बाहर अचानक शोर सुनाई देने लगा, सिकंदर आ गया, सिकंदर आ गया। मकदूनिया ने किले का मुहासरा कर लिया है। लोग महल के बाहर चीख रहे थे। मैंने घबराकर हारूस की तरफ देखा। खुदा ने तुम्हें जवाब दे दिया है असनाकिया, हारूस ने संजीदा लहजे में कहा। ख्वाब की ताबीर मिल गई और बहुत जल्द सिकंदर तुमसे यहाँ इसी किले में शादी करेगा। नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। वो कभी इस किले को सर नहीं कर सकता। मैं गुस्से से चिल्लाई। हम जब महल से बाहर निकले तो किले की सारी आबादी फसीलों की सिमत भागी चली आ रही थी। मुहाफ़िज़ दस्तों ने मोर्चे संभाल लिए थे। हारूस और हम सब ने भी किले की फसील पर पहुंचकर नीचे झांका। सिकंदर के लश्कर ने वाकई किले का मुहासरा कर लिया था, लेकिन किले की सपाट दीवारें इतनी बुलंद थीं कि किसी इंसान के लिए उन पर चढ़ना नामुमकिन था। इसलिए मैं मुतमिन थी कि किले के लोग फसीलों से झांक कर दुश्मन को ललकार रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक दुश्मन के लश्कर से एक सवार आगे बढ़ा और बैरूनी फाटक के नीचे पहुंचकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, किले के हाकम को सिकंदर का सलाम पहुँचे। सिकंदर आज़म का यह हुक्म है कि किला को पुरअमन तौर पर हमारे हवाले कर दिया जाए। हमारा यह वादा है कि सबको मुकम्मल अमान मिलेगी। सलार हारूस ने हकारत अमीद अंदाज में कहका लगाकर जवाब दिया, सिकंदर से कह दो कि जब उसके सिपाहियों के पार निकल आएं तो उड़कर किले पर कब्जा कर लें। उस वक़्त तक किला हमारे पास रहेगा। तमाशाइयों ने उस जवाब पर पुरजोश नारे लगाकर तालियां बजाईं और मैं भी बेसाख्ता हंस पड़ी। लेकिन हारूस ने मुझे घूरते हुए कहा, खुदा की मर्जी यही है कि सिकंदर किला को तस्खीर कर ले। मैंने हैरत और गुस्से से अपने उस्ताद को देखा और कहा कि यह किला नाकाबिल तस्खीर है। मोहतरम हारूस, हम 2 साल तक मुहासरा बर्दाश्त कर सकते हैं। सिकंदर इस दौरान खुद भाग जाएगा। हारिस ने गुस्से के आलम में मेरा बाजू इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं दहशत से चीख उठी, असनाकिया, मेरी बात मानो। मैं काहन हूँ और तुम्हारे सितारों के मुताबिक सिकंदर का किले पर कब्ज़ा होना लाजम है। तुम खुदा की मर्ज़ी को नहीं बदल सकती। सिकंदर को किले में दाखिल होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इससे पहले मैंने अपने उस्ताद को की हमेशा अताअत की थी, लेकिन इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकी और सख्त लहजे में बोली, तो जाकर उसको मेरे ख्वाब और अबुल हामी हुक्म की तफसील बता दीजिए। मुहाफ़िज़ दस्तों के सिपाहियों से कह दीजिए
کہ खुदा का हुक्म यही है कि हम किला सिकंदर के हवाले कर दें। उनसे कहिए कि सिकंदर के खैर मकदम के लिए फाटक खोल दें और फिर देखिए कि वो क्या करते हैं। ऐसी सूरत में मुझे गद्दारी करना होगी। हारूस ने कहा, मोहतरम हारूस, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। मैंने इल्तिजा की। हारूस की आंखों में एक सुर्खी मैल चमक नुमाया हो गई। मैं गद्दार बनकर भी वही करूंगा जो उसकी मर्जी है। मैं एक गद्दार के ज़रिए सिकंदर को ये बताऊंगा कि किस तरह उसके वो आदमी जो कोहे पेमा के बाहर हैं कमंदों के ज़रिए पहाड़ी के इस खक्कर तक पहुंच सकते हैं जो आबादी से ऊपर वाक़या है, और उसके बाद किला पर कब्ज़ा करना आसान होगा। नहीं, इस तरह गद्दारी ना करें मोहतरम हारूस। मैं तड़प कर ज़ोर से चिल्लाई। तकदीर के लिखे पर अमल होकर रहता है असनाकिया, हारूस ने सर्द लहजे में कहा और चला गया। मैं शदीद गमो गुस्सा के आलम में अपने ख्वाबगाह के अंदर टहल रही थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। हर सीमत सन्नाटा तारी था। अचानक हारूस अंदर दाखिल हुआ और खुदा की मर्जी पूरी हो गई सनाकिया। उसने आहिस्ता से कहा, हारूस, ये आपने क्या कहा? मैंने तड़प कर कहा, वही जो खुदा की मर्जी है। आओ हम इबादत करते हैं। मैंने गुलामों से कह दिया है कि किसी को भी अंदर दाखिल ना होने दें। इबादत हमारी बेचैन रूह को तस्कीन पहुंचाएगी। और उन्होंने मेरे गिर्द एक बड़ा सा हसार खींच दिया ताकि बदरूहें अंदर दाखिल ना हो सकें, और उनकी अंगारा जैसी सुर्ख आंखें मुझ पर मरकूज थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहे थे और मुझे अपना जिस्म हल्का होता महसूस होने लगा। कुछ देर बाद मैंने यूँ महसूस किया कि जैसे मैं फ़िज़ा में परवाज़ कर रही हूँ। मेरे कानों में हारूस की आवाज़ गूंजी, असनाकिया, तेरा हर हुक्म मेरे गुलामों के लिए मुकद्दस फरीज़ा है और वही सब कुछ करेंगे जो तेरी मर्ज़ी है। मैं शायद खुद भी यही अल्फाज दोहराने लगी थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरी आंख खुली तो सुबह नमूदार हो चुकी थी। हारूस मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उठो असनाकिया, खुदा की मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। हारूस ने हथियार डाल दिए। मकदूनी सपा किला पर काबज़ हो चुकी है। सिकंदर के इस्तकबाल की तैयारी करो। सबा और मशाताओं के श्रृंगार के बाद जब मैं दरबार में दाखिल हुई तो हाल में सन्नाटा तारी हो गया। हाल मकदूनी कमांडरों से खचाखच भरा हुआ था। किले के मुहाफ़त दस्ते के अफसरान भी मकदूनियों के साथ घुल मिलकर फ़तेह का जाम पी रहे थे, लेकिन मेरी आंखें सिकंदर को तलाश कर रही थी और बिल आखिर मैंने उसे ढूंढ लिया। वो सरदार हारूस के साथ खड़ा मबहूत निगाहों से मुझे घूर रहा था। अपने पिस्ता कद के बावजूद सब में नुमायां और उसकी नीली आंखों में एक सहर था। उसकी शख्सियत में शहनशाहों का वकार और दबदबा था, और उसकी निगाहें मिली तो मेरे जिस्म में बरकी लहर सी दौड़ गई। अजीम फातेह बराबर खड़े हुए हारूस ने सकूत तोड़ा। इजाज़त दीजिए कि मैं सरदार आख्तरत की दुख्तर शहजादी असनाकिया से आपका तारफ़ करा दूँ। ये लड़की वाकई हुस्न की शहजादी है एमलश, सिकंदर ने बराबर खड़े हुए यूनानी कमांडर से कहा और फिर मुझसे मुखातब हुआ। खुश आमदीद हुस्न की देवी, तुम पहली औरत हो जिसने मेरी ताज़ीम में झुकना पसंद नहीं किया। मैंने अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी और फिर बेबाकी और जुर्रत के साथ उसकी आंखों में झांका। सिकंदर आज़म, तुम ऐरानी नहीं यूनानी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तकबाल मकदूनियों की तरह किया है। सिकंदर की आंखें चमक उठीं, क्योंकि मैंने जवाब उसी की ज़ुबान में दिया था। असनाकिया, तुम जितनी हसीन हो उतनी ही ज़हीन और खुश ज़बान भी हो, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे ये देखकर बड़ी मसरत हुई कि तुम इतनी शस्ता यूनानी बोलती हो। मेरे दिल में नफ़रत की आग लग रही थी, लेकिन लबों से शीरीं बयानी जारी थी। मेरे आका, मैं हमेशा वीरानों में नहीं रही, मैंने दिलकश लहजे में कहा। सिर्फ 1 साल पहले मेरे बाप ने मुझे यहाँ इसलिए भेज दिया था कि मैं दुश्मनों की ज़िद से महफूज रहूँ। ऐसा ही होगा असनाकिया, मैं ज़िबस की कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा ही होगा। बावजूद कि तुम्हारा बाप मुझसे अब भी परसरे पेकार है, लेकिन तुम मेरी दुश्मन नहीं हो। मैं दिल ही दिल में उसकी दीवानगी पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिकंदर ने अचानक अपनी कलाई से एक तलाई कड़ा निकालकर मेरी कलाई में पहना दिया। ये अदना सा तोहफ़ा कबूल करो असनाकिया, ये मेरी दोस्ती का सबूत है। मेरे आका, आप वाकई एक फ़राख दिल फ़ातेह हैं, लेकिन तुम्हारे हुस्न ने मुझे फ़तेह कर लिया। मैं फ़ातेह की बजाय एक अदना ग़ुलाम बन गया हूँ। मुझे वहमो गुमान में भी न था कि इन चट्टानों के दरमियान ऐसा नायाब हीरा पोशीदा होगा। मुझे यूँ शर्मिंदा न करे मेरे आका। सिकंदर आज़म के कदमों पर मुझ जैसी कनीज़ें सजदा करती हैं। मैंने सर झुकाते हुए कहा, आज मुझे मेज़ियाब का शर्त अता करें। वाह, तुम्हारी ये दावत मुझे हमेशा याद रहेगी।
हसीन असनाकिया, सिकंदर ने खुशी से मखमूम होकर जवाब दिया। सिकंदर का ये हुक्म था कि फ़तेह के बाद ख़वातीन की बेहुरमती ना की जाए, इसलिए ऐरानी हरम का रुख किसी ने ना किया था। शानदार ज़ियाफ़त की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। मेरा दिल अपनी बेबसी पर तड़प रहा था। मैंने कभी सोचा भी न था कि अपने वतन को ताराज करने वाले फ़ातिह का खैर मकदम भी मुझे खुद करना होगा। उसका दिया हुआ तलाई कड़ा मेरी कलाई में चमक रहा था और मुझे ये ग़ुलामी के जंजीर लग रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और खुदा से दुआ करने लगी कि मुझे हालात से निपटने की कुव्वत और सलाहियत अता फरमाए। इस तरह कुछ सुकून तो हुआ। हारिस की दानिशमंदी समझ में आई। अगर सिकंदर ने इजाज़त दी होती तो अब तक उसके लश्करी हम सब की इज्जत लूट चुके होते। उससे बेहतर ये था कि हम बाइज़्ज़त तरीके से उनको अपनाने की कोशिश करें। मैं जब कमरा ज़ियाफ़त में दाखिल हुई तो एक बार फिर सब मबहूत हो गए। मुझे अपने हुस्न पर पहली बार गरूर और बेपनाह मसरत का एहसास हुआ। ज़ियाफ़त के कुशादा हाल में हर सिमत शाहाना सजावट थी। नरम कालीन और गलीचों पर पैर धंसते थे। दीवारों पर शेर की खालें लटक रही थी। हाल के आतशदानों में आग रोशन थी। दरमियान में रखी हुई गोल मेज़ पर सोने के जामो सागर रखे थे। मैं सिकंदर और उसके सरदारों के दरमियान बड़े वक़ार से बैठी हुई थी और मेरी बहन गुमाया बड़ी बेशर्मी के साथ एक और मकदूनी सरदार से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ज़र्क बर्क पोशाकों वाले गुलाम खाना लगा रहे थे। हाल में हर सिमत जश्न मसरत का रंगीन माहौल था। सिकंदर की मखमूर निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं।